Sunil Pada Goswami, the name itself is something that which is the peace. And if I have seen many people, but I think that Sunilda is one of the image of Matlokji. Matlokji was never having any tension. Matlokji was having calm and quiet, whatever the situation comes. Never he used to show any kinds of, that irritation, and always very, very approachable also was there, which is required for a leader. In संघ में हम लोग किसी को लीडर नहीं बोलते हैं, but a leader should be approachable by everyone. So Sunilda also similar kinds of, I have seen, whenever you call Sunilda, maybe that he is in a meeting, he will not take, but after evening or maybe next day, Sunilda will come and tell, হ্যাঁ বলো কি হয়েছিল, means what happened. So this is a quality of leadership in corporate level also. I work in Infosys, so there also, whenever a manager always should be approachable. So this is the quality was having with Matlokji, and I think that is being transmitted very properly to our Sunil Pada Goswami, as Ramakrishna Dev transmitted a lot of things to Vivekananda. So basically, Sunil Pada Goswami is from Malda district. Everybody knows Malda in the map of our West Bengal. And Sunilda became Pracharak in 1975 in that very black era. So that time, 75, I think that hardly that time Sunilda was 20 years old. Sunilda's father was very renowned advocate. Sunilda also completed his law. I think that BA he has completed. After that, he has completed from Calcutta University law. And after that, in emergency, Sunilda was in prison. And then Sunilda was Ila Pracharak, then Kshetra Pracharak, the Pranta Pracharak, then Kshetra Pracharak. And Sunilda is a household name of West Bengal and particularly for Odisha. And particularly, we are really great from Swadeshi Sangho side. Sunilda is one of our inspirations. Sunilda has come Bangalore several times, wherever, even in states also, wherever we do some kinds of program and all, Sunilda always has guided us and always was with us. Never ever shown any kinds of, disgust or something like that. So over to you, Sunil. मोतलूक जी का श्रद्धांजलि सभा बहुत स्थान पर हो रहा है, लेकिन आज का जो ये श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि इसलिए विशेष है, आज श्री कृष्ण मोतलूक जी का परिवार, अभी मैं सबका तो नाम उल्लेख नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनके भतीजा, उनके भतीजी, उनके परिवार के बहुत व्यक्ति उपस्थित है आज एक श्रद्धांजलि सभा में। आज का ये जो श्रद्धांजलि देखकर हमको लग रहा है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरा देश एक साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण के लिए श्री कृष्ण मोतलूक जी का कार्यक्रम में उपस्थित है। उत्तर से और दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम से, इसलिए मैंने उल्लेख किया कि मोतलूक जी सचमुच सारे देश के लिए प्रेरणा का प्रतीक। मेरा मोतलूक जी के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के बोलने के समय उनको याद आ रहा है, बहुत विषय उल्लेख हो गया, लेकिन एक विषय उल्लेख करना आवश्यक है। मेरा लगता है प्रचारक जीवन, लंबा जीवन बहुत प्रचारक को होता है,
लेकिन एक केंद्र में रहकर और एक लंबा समय प्रचारक का जीवन बिताना, इसमें श्री कृष्ण मोतलोक जी अनुभव। मेरा याद है 1981 जब नागपुर से कलकत्ता आए, श्री कृष्ण जी 1981 के बाद उनका दायित्व बढ़ते गए। प्रांत प्रचारक, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह प्रचारक प्रमुख, आखिर में कार्यकारिणी सदस्य। ये जो लंबा समय 1981 और नागपुर जाने तक यानी 2015, मेरा लगता है उनका जो लंबा प्रचारक जीवन, इसका जो अनुभव ये पूर्वांचल में बीता। बहुत सबने उनके बारे बहुत उल्लेख किया, त्रिपुरा की परिस्थिति कैसा संभाले, असम क्षेत्र में इतना दुर्गम एरिया में काम कैसे बढ़ाए, अंडमान निकोबार में जब कुछ काम नहीं था वहां पर जाकर काम करने का हिम्मत दिखाना, बंगाल जैसा प्रांत यहाँ पर इतना, जिस समय श्री कृष्ण आए थे उस समय यहाँ पर वामपंथी का बहुत दबदबा था। आज बंगाल में जो परिस्थिति है और जिस समय श्री कृष्ण आए थे उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा परिस्थिति में उन्होंने लंबा समय, ये जो आसाम बंगाल विशेष करके ये दोनों प्रांतों में उन्होंने अधिक ध्यान दिया, उसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज सारा भारत में देखने को मिलता है। मेरा याद है जब मैं कलकत्ता में महानगर प्रचारक होकर आए 1985, उसके पहले 4 साल पहले मोतलोक जी नागपुर से कलकत्ता आ गए थे। बहुत उनके बारे में उल्लेख हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर आकर खाना सीखा, यहाँ का भाषा सीखा, यहाँ का व्यवहार सीखा, यहाँ का जीवन आचरण सीखा। ये उनके जीवन में एक विशेष बहुत उल्लेख हुआ है, सिंप्लिसिटी। उनके ये जो बहुत सिंपल जीवन बिताना, उनका विशेष सबने उल्लेख किया। लेकिन श्री कृष्णदा थिंक टैंक भी थे, बहुत बड़ा चिंतक थे। अब देखिए 1985, 81 और 1989 केवल 8 साल बंगाल में एक बहुत बड़ा संघ कार्यालय हुआ। इस कार्यालय का नाम केशव भवन। ये केशव भवन निर्माण के समय आर्किटेक्ट, सचमुच कार्यालय बनाने के पीछे जिनका योगदान था, 85 में भूमि पूजन हुआ और 89 में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कलकत्ता कार्यालय उद्घाटन के समय पूजनीय बाला साहब जी आए। देश भर से सभी अखिल भारतीय अधिकारी इस समय आए थे और बाला साहब जी ने हंसते हंसते बताए थे कि देखो हिंदुस्तान में पहला कार्यालय कलकत्ता में हो गया। ऐसे श्री कृष्ण मोतलोक जी बहुत पर्दा के पीछे काम करते। मैंने उनका जो जीवन का और एक दिख था, सामने नहीं आकर पीछे, पर्दे के पीछे रहकर उत्साहित करना। इसलिए हम लोगों को देखने को मिला सारे भारतवर्ष में पहले पूर्वांचल में 91 उस समय मोतलोक जी क्षेत्र प्रचारक हो गए थे। लेकिन उनका बंगाल में इतना बड़ा जो शिविर हुआ, जो कल्याणी महाशिविर, आज यहाँ पर जितने वक्ता है मेरा लगता है सब आपने भी कल्याणी शिविर देखे होंगे। ये जो कल्याणी शिविर का रूपकार, आर्किटेक्ट, इतना बड़ा शिविर का व्यवस्था खड़ा करना, इनके पीछे
श्री कृष्णदा का बहुत बड़ा योगदान। श्री कृष्णदा के साथ जो परिवार मिलना बहुत उल्लेख हुआ है। एक बार श्री कृष्णदा के साथ नागपुर में, ये हमारा मोतलोक परिवार, बड़े भाई के परिवार में हम लोग गए। मोतलोक जी हम लोगों को ले जाते थे। बड़े भाई और भाभी जी उस समय जीवित थे। जब चेन्नई में गए तो चेन्नई में आज वो डॉक्टर होंगे, तो दोनों ही छोटा था, तो दोनों बहुत अच्छा तमिल बोलते थे और चाचा जी के साथ आकर मराठी बोलते थे। तो मैं ये सब दोनों देखने के बाद आज वो दोनों उपस्थित है यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में। चाचा जी के प्रति उन लोगों को जो आकर्षण, परिवार में सबसे छोटा होने के कारण उनका नाम बालू था, मैंने बालू, उनके प्रेम पूर्वक नाम था बालू। लेकिन देखिए जब बंगाल में आए तो बंगाल में सब बालू भूल गए। उन्होंने बंगाल में आकर उनका नाम श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण का जैसे बहुत रूप अलग अलग, ऐसे श्री कृष्ण मतलब वो भी हमारा सबके लिए बहुत प्रेरणादायक, छोटा छोटा अपने आचरण से हम लोगों को सिखाए। श्री कृष्ण का लंबे समय काम करने के बाद जब प्रचारक के जीवन में अवसर तो कुछ नहीं है, रिटायरमेंट तो प्रचारक में नहीं होता है। हम लोगों को सुनने को मिला जब उनको कुछ दायित्व नहीं रहा तो नागपुर से अपना योजना हुआ। श्री कृष्णदा 36 साल कलकत्ता में उन्होंने 36 साल रहे, 36 ईयर, और 36 साल के बाद सीधा नागपुर चले गए। मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, ये जो अंतिम समय भी पॉजिटिव रहना, जीवन के अंतिम समय तक सबको उत्साहित करना, ये उनके जीवन का बहुत विशेष था। 4 साल नागपुर में रहे, लेकिन बंगाल और असम इस क्षेत्र में उनका इतना आकर्षण था, स्वयंसेवकों का आकर्षण उनके प्रति भी था। इसलिए कम से कम ये 4 साल में बहुत बार इधर आए, संघ शिक्षा वर्ग में आए, कभी कोई एक कार्यक्रम निमित्त आए और आकर स्वयंसेवक के घर जाते थे, व्यक्ति से मिलते थे। अभी हिमाद्री दा भी उल्लेख किया, परिवार में जाना, परिवार के साथ बात करना, ये जो उनकी जो एक शैली था, ये शैली हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। श्री कृष्णदा अंतिम समय ग्वालियर में जो प्रतिनिधि सभा, उस समय उनके साथ मेरा भेंट हुआ 2019। एक साल पहले भी मोतलोक जी को नहीं लगा कि इतना जल्दी चले जाए, थोड़ा स्मरण भूल रहा था, थोड़ा चलने में कष्ट शुरू हुआ था। लेकिन नागपुर में 2020 अभी जो हमारा मार्च बैठक बेंगलोर में था, उस समय प्रतिनिधि सभा बैठक तो नहीं हुआ, और प्रतिनिधि बैठक के समय बहुत कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर वापस गए। मैं भी चेन्नई कार्यालय में थोड़ा अटक गए, क्योंकि ट्रेन व्यवस्था नहीं रहने के कारण। एक दिन रात को एक फोन आया, और फोन में श्री कृष्णदा का फोन था। मैंने जब उठाया तो पूछा, तो बंगला में हमको पूछा, तो मैंने बोला मैं सुनील। उन्होंने पूछा केमन आछो, कैसे हो? तो मेरा मन इतना भर गया, मैं सोच रहा था ये कोरोना काल में बहुत कार्यकर्ता कहाँ है, क्या है, सब भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने याद किया। आज श्रद्धांजलि सभा में मेरे कान में वही आवाज गूंज रहा है, केमन आछो, कैसे हो? 2-3 महीना के बाद मैं नागपुर में फोन किया था,
रामदा आज उपस्थित है। मैंने रामदा को पूछा कि मोतक जी का स्वास्थ्य कैसा है। रामदा ने उस समय बताया, अभी थोड़ा स्मरण शक्ति कम हो गया, थोड़ा फोन में बात करने के लिए थोड़ा नहीं चाहते हैं, तो मैंने पूछताछ करके छोड़ दिया, चलो उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। ये 4 दिन के पहले, और 4 दिन के बाद जैसे आप सबको खबर मिला, आपको जब खबर मिला हमारा श्री कृष्ण का चले गए, जैसे मेरे भी पास रात्रि में खबर आया, सबका श्री कृष्ण, हमारा सचमुच श्री कृष्ण, जो सबको मार्गदर्शन किया, हम सबको छोड़ के चले गए। कभी ऐसा महान विभूति जब चले जाते हैं तब सबके मन में तो कष्ट होता ही है। आज पूरा मतलब परिवार श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित है। श्री कृष्णदा का जीवन एक त्यागमय जीवन, एक प्रेरणामय जीवन, हजार हजार कार्यकर्ता के जीवन में उन्होंने बहुत लंबा समय रहेगा। तुलसीदास का वो बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ। तुलसीदास का जो कथन है, जब तुमने जगत में आया था तो तुम रो रहा था, ऐसा काम करो, ऐसा करनी करो जब तुम हंसते हंसते चले जाएंगे। अगर आज हम सब श्रद्धांजलि के लिए आए, रोते रोते बिताई देंगे। आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं श्री कृष्ण मोतक जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके परिवार जो उपस्थित है सबके प्रति, श्री कृष्णदा के प्रति मेरा अंतिम श्रद्धांजलि